Namaste. In last period, in vector, we have seen parallelogram law of addition of vectors, triangle law of addition of vectors. In today's period, we will discuss some more algebra of vectors starting from subtraction of vectors. If we are having two vectors a bar and b bar, if first vector is a bar, if I use that a bar as a b bar, and second vector, that is b bar, is represented by vector bc bar in direction and magnitude. Then if I use yesterday's triangle law of addition of vectors, then these two vectors are in order, then their resultant will be AC bar starting from A to the end points of the two vectors, that is AB and BC. The end point of these two vectors is C. So starting from A to that end point C, this will be the resultant of A bar and B bar. So A bar plus B bar is the vector AC bar by triangle law of addition of vectors. If I use the vector that is BD bar having same magnitude but opposite direction as that of vector BC bar, BC बार की और BD बार की सिर्फ डायरेक्शन अपोजिट लेना चाहते हैं, मैग्नीट्यूड उतनी ही है, तो आप जो BC बार को B बार कह रहे थे वही आपका BD होगा, लेकिन माइनस के साथ. अपोजिट डायरेक्शन है, मैग्नीट्यूड उतनी ही है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए माइनस B बार ये BD बार वेक्टर को आ जाता है वैल्यू. अब ये आपके पास इंफॉर्मेशन अगर है तो फिर से एक बार, ये दो वेक्टर इन ऑर्डर है, दैट इज AB बार एंड BD बार. ये दोनों वेक्टर का अगर आप रिजल्टेंट फाइंड करते हैं वंस अगेन ट्रायंगल लॉ से, तो आपको क्या मिलता है? ये एक ऐसा वेक्टर मिलता है जो ट्रायंगल की थर्ड साइड होगी. तो थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल स्टार्टिंग फ्रॉम A to that end point, that is D, will be the resultant of these two vectors, that is A bar plus minus B bar. So what we have seen here, this A bar plus minus of B bar is nothing but the A bar minus B bar. So what is subtraction of two vectors? Subtraction of two vectors is nothing but addition of two vectors. First vector is A bar and second vector is negative of the B bar. Second vector is not B bar, it is negative of the B bar. Adding A bar and negative of B bar, which is the one type of addition, but in another way, when we take this plus into minus, it is nothing but minus by our mathematics rule. So A bar minus B bar is defined as sum A bar plus minus of B bar. So this is somewhat subtraction method for getting two vectors. So same thing is described in this description. So we are having same information, that is BD bar is equal to minus of BC bar. So minus of BC bar is B bar. So minus with this B bar. And here we can say AD bar by triangle law of addition of vector is AB bar plus BD bar. AB bar is A bar and BD bar is minus of B bar. So AD bar we are having as A bar plus minus of B bar. And this A bar plus minus of B bar is nothing but A bar minus B bar. This is the definition of subtraction of two vectors. Now we are having some observations using the subtraction and all this triangles law. Adding vector to its opposite vector gives us 0. This is the जनरल स्टेटमेंट. किसी भी वेक्टर को उसके अपोजिट वेक्टर के साथ अगर ऐड करते हैं तो रिजल्टेंट उसका वैल्यू मिलती है 0. फॉर एग्जांपल, पहला अगर आप PQ लेते हैं, वेक्टर PQ, और उसको ही QP के साथ ऐड करते हैं, तो P से Q तक और Q से P तक, तो फर्स्ट एंड लास्ट पॉइंट सेम ही आता है. P से P तक ही वो वेक्टर तैयार होता है और P से P तक वेक्टर ये नल या जीरो वेक्टर के कैटेगरी में आता है, जिसकी मैग्नीट्यूड 0 होती है, और उसको डिनोट करने के लिए 0 के ऊपर आप बार यूज करते हैं, जीरो वेक्टर. सेम थिंग, ये जो आपका PQ है, PQ बार है, ये माइनस ऑफ QP बार है, ऐसा कह सकते हैं. मैग्नीट्यूड उतनी है इसलिए इक्वलनेस दोनों के बीच में एग्जिस्ट होता है माइनस के साथ, बराबर है. तो PQ बार प्लस QP बार को अगर ऐड करते हैं
तो इस रिश्ते से आप कह सकते हैं ये पी क्यू को तो माइनस क्यू पी बार कह सकते हैं, तो माइनस क्यू पी बार प्लस क्यू पी बार, तो ये सेम वेक्टर विथ अपोजिट साइन मेंटेन होता है और उसकी वैल्यू इस रास्ते से भी आपको जीरो मिलती है, जीरो वेक्टर मिलती है। और यही कंसेप्ट अगर आप ट्रायंगल में यूज करते हैं तो ट्रायंगल में आप तीनों साइड जो है उसमें से पास होने वाले अगर तीनों वेक्टर को ऐड करते हैं, लेकिन आपका ट्रायंगल लॉ तो इस स्ट्रक्चर में आता है, पहली साइड में से पास होने वाला वेक्टर दूसरे साइड के में से पास होने वाले वेक्टर के साथ अगर ऐड करते हैं तो उनका रिजल्टेंट होता है इस ए से सी तक जाने वाला वेक्टर। और आप अगर साइकिल में उनको वेक्टर को ऐड करते हैं, इसमें ऐड किया गया है ए बी बार, अगर मैं ऐड करता हूँ ए बी बार को बी सी बार के साथ और उसके साथ मैं ऐड करता हूँ सी ए बार, तो वैसे ट्रायंगल लॉ आपका क्या कहता है, ट्रायंगल लॉ ये कहता है कि आपने अगर दो वेक्टर स्टार्ट किए ए से बी तक, बी से सी तक, ये दो कंटिन्यू वेक्टर इन ऑर्डर में है, तो ये दोनों का वेक्टर होता है वैसे ए सी बार, बराबर है। ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर आपको ये दोनों का रिजल्टेंट ए सी बार देता है और ए सी बार ही अपोजिट में क्या लिख सकते हैं, माइनस ऑफ सी ए बार। तो जब आप ए बार प्लस बी बार, आपके पास डाटा ऐसा है कि ए बी बार प्लस बी सी बार, ये ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर से क्या मिलता है, ए सी बार। और जब इस ए सी बार को रिप्लेस करना है तो उसकी वैल्यू क्या मिलती है, माइनस ऑफ सी ए बार। तो ए बी बार प्लस बी सी बार इज इक्वल टू माइनस ऑफ सी ए बार। और इस माइनस ऑफ सी ए बार को अगर लेफ्ट में यूज करते हैं तो ए बी बार प्लस बी सी बार प्लस सी ए बार इज इक्वल टू नथिंग, मीन्स जीरो बार। तो ये आपके पास ये रिजल्ट मिलता है ट्रायंगल के साइड्स में से जाने वाले तीन वेक्टर अगर आप कंटिन्यूस साइकिल में यूज करते हैं तो ये तीनों वेक्टर की एडिशन हमेशा जीरो वेक्टर होती है, ये आपको याद में रखना है। अब इसके बाद में आपका जो ट्रायंगल लॉ है वो ट्रायंगल लॉ एक्सटेंड करना चाहते हैं नंबर ऑफ टाइम्स, अगर उसको ट्रायंगल लॉ को यूज करेंगे तो ये ट्रायंगल लॉ का स्ट्रक्चर हटके एक पॉलीगोनल लॉ मिलता है एडिशन ऑफ वेक्टर का, वो इस एग्जांपल से आपको समझ में आ सकता है। तो आपके पास चार वेक्टर है, पहला वेक्टर है पी क्यू बार जिसको आपने ए बार कहा है, दूसरा वेक्टर है क्यू आर बार जिसको आपको बी बार कहना है, तीसरा वेक्टर है आर से लेकर एस तक का जिसको आपको सी बार कहना है, और चौथा वेक्टर है एस से लेकर टी तक उसको आपको डी बार कहना है। तो वही आपने यहाँ यूज किया है लेटर्स वेक्टर्स, और उसका स्मॉल लेटर क्या है उसके लिए। आप अगर एक चारों को स्मॉल लेटर्स को ऐड करते हैं तो उनकी वैल्यू उससे रिप्लेस करो पहले। तो मेरे पास ए बार है, इसका मतलब ए बार कौन सा वेक्टर है, पी क्यू बार है। बी बार को रिप्लेस करना है तो क्यू आर बार से, सी बार को रिप्लेस करना है तो आर एस से, डी बार को रिप्लेस करना है तो एस टी बार नाम का वेक्टर रिप्लेस करना पड़ेगा उसकी जगह पे। लेकिन आप अगर पहले दो वेक्टर को देखते हैं तो पहले दो वेक्टर एक ब्रैकेट में अगर यूज करेंगे तो ये कौन है, ये पी क्यू बार है और दूसरा कौन है, क्यू आर बार है। ये दोनों इन ऑर्डर में है, एक के आगे एक है, कंटिन्यू में अगर है तो ये दोनों का रिजल्टेंट ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर क्या मिलता है, तो ये दोनों का एडिशन उस कॉमन पॉइंट से पास होने वाला एन तक पॉइंट तक जो वेक्टर मिलता है ये दोनों का रिजल्टेंट होता है। तो रिजल्टेंट ये जो पी आर है, ये पी आर ये ए बार और बी बार का रिजल्टेंट है, ऐसा आप कह सकते हैं। तो पी क्यू बार प्लस क्यू आर बार को रिप्लेस करना है तो पी आर बार आप यूज कर सकते हैं और रिमेनिंग दो वेक्टर एज इट इज। अब नेक्स्ट आपको ये दो वेक्टर को एक बार चेक करना है, तो आपके पास पी आर बार की वैल्यू क्या तैयार हुई है, ए बार प्लस बी बार तैयार हुई है। और इसी को आगे कंटिन्यू में दूसरा वेक्टर कौन सा मिलता है, आर से लेकर एस तक का वेक्टर। तो आपके पास दो वेक्टर आपको मिले हैं, पी आर बार आर एस बार, पी आर बार आर एस बार। तो ये दो वेक्टर दो ट्रायंगल के साइड्स में से पास होते हैं, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन रिप्रेजेंट करते हैं दो साइड्स में। तो इन दो वेक्टर का रिजल्टेंट होता है उस ट्रायंगल का थर्ड साइड। तो ये थर्ड साइड उस दो वेक्टर का रिजल्टेंट होता है, तो थर्ड साइड मींस पीएस। तो पीएस ये दोनों का रिजल्टेंट है, तो ये ए बार प्लस बी बार एंड सी बार को जब ऐड करेंगे तो ये तीसरी साइड से पास होने वाला वेक्टर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन से रिप्रेजेंट होता है।
तो आपको पी आर बार प्लस आर एस बार, पी आर बार प्लस आर एस बार, ये पी एस बार मिलता है। तो ब्रैकेट के दो टर्म्स को हटाने के लिए ट्रायंगल लॉ से आपको मिलता है पी एस बार और आपको एस टी बार आगे है। अब एक बार फिर से आपके पास दो वेक्टर है, एक पी एस वेक्टर पी एस एंड दूसरा है वेक्टर एस टी। तो ये दो वेक्टर सक्सेसिव में है, ऑर्डर में है, तो ये ट्रायंगल लॉ से फिर आपको रिप्लेस करना है। उसमें से पहला वेक्टर जो पी एस है उसकी वैल्यू है ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार, और दूसरा जो वेक्टर है एस टी उसकी वैल्यू है स्मॉल में डी बार। तो ये दो वेक्टर का रिजल्टेंट उस ट्रायंगल की तीसरी साइड होती है जो कॉमन इस स्टार्टिंग पॉइंट से पास होता है वेक्टर। तो ये पीटी बार, तो पी एस बार प्लस एस टी बार, पी एस बार प्लस एस टी बार, ये होगा वेक्टर पीटी बार। तो ये पीटी बार ये चारों वेक्टर का इज द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द वेक्टर्स ए बार बी बार सी बार डी बार। और इस तरह से आप कितने भी आगे कंटिन्यू कर सकते हैं, कितने वेक्टर आप ले सकते हैं, हर एक को आप ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर से उनका रिजल्टेंट आगे कंटिन्यू फाइंड करने के लिए प्रोसेस कर सकते हैं। तो ये जो है, ये जो फिगर आपको तैयार हो रही है, ये फिगर अगर मैं इस इंटरनल स्ट्रक्चर्स को अगर कैंसिल करता हूं तो ये ट्रायंगल से अलग है, ट्रायंगल से अलग है। तो ये एक दो तीन चार पांच अलग अलग कॉर्नर पॉइंट्स लेता है। तो ये पेंटागन है, ये क्वाड्रिलेटरल हो सकता है, पेंटागन हो सकता है, हेक्सागन हो सकता है। इसका मतलब ज्यादा साइड्स वाला, ज्यादा वर्टाइसेस वाले फिगर्स आप यहाँ तैयार कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ ट्रायंगल। तो ये ट्रायंगल लॉ ट्रायंगल से आगे एक्सटेंड कर सकते हैं पॉलीगॉन के लिए। तो ये जो रूल है, ये जो लॉ है दो वेक्टर या वेक्टर्स को ऐड करने का, उसको आपने कहा है पॉलीगोनल लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स। ये आगे कितने भी बार आप एक्सटेंड कर सकते हैं वर्टाइसेस अगर आपके पास अवेलेबल है विथ वेक्टर्स। तो इसको आप कहना चाहते हैं पॉलीगोनल लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर। अब आपके पास कुछ ऑब्जर्वेशन है वेक्टर्स के बारे में जिसको आप कई बार अलग अलग कंसेप्ट में यूज किए हैं, जैसे नंबर्स में कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, आइडेंटिटी, इनवर्स, ये सब कंसेप्ट आप हर कंसेप्ट में चेक करते हैं, चाहे वो मैट्रिसेस होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, रियल नंबर होगा, तो उसमें ये एडिटिव, इनवर्स, एडिटिव, आइडेंटिटी, ये सब कंसेप्ट आप चेक करते हैं। तो यहाँ भी आपके पास ये वेक्टर्स में भी ये प्रॉपर्टीज होल्ड होते हैं। तो उसमें से पहली प्रॉपर्टी है कि ए बार प्लस बी बार और ये बी बार प्लस ए बार, यह भी आप अगर इसको बी बार कहते हैं, इसको ए बार कहते हैं, तो उसका आंसर होगा बी बार प्लस ए बार। तो वेक्टर तो वही होगा। तो नाम चेंज करने से, नाम इंटरचेंज करने से वेक्टर के रिजल्टेंट के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आता है। इसीलिए आप कह सकते हैं कि वेक्टर में कम्यूटेटिव लॉ होल्ड होता है, सेटिस्फाई होता है। उसी तरह से ए बार प्लस बी बार, ये एक वेक्टर सी बार के साथ अगर ऐड करते, ब्रैकेट को सी बार के साथ ऐड करते हैं, तो ये आप ए बार प्लस दिस ब्रैकेट, इसका भी रिजल्टेंट फाइंड करते हैं। दोनों का रिजल्टेंट सेम रहता है, उसकी आउटपुट की या फिर रिजल्टेंट की वैल्यू सेम रहती है। तो ये एसोसिएशन आप चेंज कर सकते हैं। ए बार प्लस बी बार पहले फाइंड करके उसको सी बार के साथ ऐड करो, या फिर ए बार को बी बार प्लस सी बार के सम के साथ ऐड करो, तो आंसर सेम रहता है। इस रूल को आपने कहा है ऑलरेडी एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएशन चेंज कर सकते हैं। या आपको ऐसा एक वेक्टर भी मिला है जो किसी के भी साथ ऐड करते हैं तो उससे आंसर चेंज नहीं होता है। तो जो ऐड करते हैं जिससे आंसर चेंज नहीं होता है उसको एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं। तो यहाँ जीरो वेक्टर आपको मिला है एडिटिव आइडेंटिटी, बराबर। जैसे नंबर में भी जीरो एक नंबर ऐसा है किसी के साथ ऐड करने से आंसर चेंज नहीं होता है, तो उस जीरो को आप एडिटिव आइडेंटिटी कह सकते हैं नंबर्स में। उसके बाद में ए बार प्लस माइनस ऑफ ए बार इज इक्वल टू क्या होता है, तो एक वेक्टर और उसके निगेटिव के साथ उसको ऐड करेंगे तो ये रिजल्टेंट आंसर डेफिनेटली जीरो वेक्टर होता है। तो इस माइनस ए बार को वैसे तो निगेटिव ऑफ ए बार कहते हैं, लेकिन ये एडिटिव आइडेंटिटी का आंसर मेंटेन करता है। ये माइनस ऑफ ए बार ए के साथ ऐड करने के बाद एडिटिव आइडेंटिटी अगर आंसर देता है तो दूसरे को पहले का इनवर्स कह सकते हैं उस ऑपरेशन में। तो ये माइनस ऑफ ए बार इज नथिंग बट एडिटिव इनवर्स ऑफ दिस ए बार। और सिंपल में नंबर्स अगर मल्टीप्लाई करते हैं, स्केलर मल्टीपल अगर यूज करते हैं, कल के पीरियड में जैसा डिस्कस किया था, तो ए एंड बी अगर दो वेक्टर है, एम एंड एन अगर स्केलर से नंबर्स है, तो आप एम प्लस एन ब्रैकेट में और बाहर से ए बार है, ए बार का एम एंड एन के साथ सेपरेटली प्रोडक्ट लेके उसको
ऐड करते हैं तो आंसर चेंज नहीं होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ मेंटेन होता है। यम और अंदर आप अगर ये बार प्लस बी बार है तो इस यम से भी दोनों को सेपरेटली मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बैलेंस होता है लेफ्ट राइट के साथ। यम इंटू एन ए बार इज इक्वल टू एम एन इंटू ए बार इज इक्वल टू एन इंटू एम ए बार। दिस कैन बी हैपन इन केस ऑफ स्केलर मल्टीप्लीकेशन। एंड ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये फैक्टर में होल्ड होती है, ये कॉम्प्लेक्स में भी आपने मेंटेन किया होगा, मैग्नीट्यूड निकालते समय, मॉड्यूलस निकालते समय कॉम्प्लेक्स नंबर का, कॉम्प्लेक्स नंबर में था कि Z1 प्लस Z2 का मॉड लेस देन और इक्वल टू रहता है मॉड ऑफ Z1 प्लस मॉड ऑफ Z2। उसी तरह से ये किसी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड निकालते हैं उसी कंसेप्ट से निकालते, जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस निकालते हैं। तो ये मॉड ऑफ ए बार प्लस बी बार is always less than or equal to mod of a bar plus mod of b bar. This property is called as a triangle inequality। क्योंकि आपको मालूम है कि ट्रायंगल में कोई भी ट्रायंगल अगर आप यूज करते हैं, जैसे यहाँ ट्रायंगल है तो कोई भी दो साइड अगर ऐड करते हैं, कोई भी दो साइड अगर मैं इसको कहता हूँ यहाँ अगर ऐड करते हैं आप ए बी प्लस बी सी को अगर ऐड करते हैं, ए बी साइड एंड बी सी साइड को अगर ऐड करते हैं तो इस एडिशन का आंसर डेफिनेटली ए सी से बड़ा ही होता है, एसी से बड़ा होता है। तो दो सेपरेटली ऐड करेंगे, दो साइड्स ट्रायंगल के अगर ऐड करते हैं तो सम तीसरे साइड से डेफिनेटली बड़ी होती है, ज्यादा होती है। तो ये कंसेप्ट भी वेक्टर्स में होल्ड होता है। ये अगर कंसेप्ट मैग्नीट्यूड में लगाते हैं आप तो दो वेक्टर्स की एडिशन, दो वेक्टर के मैग्नीट्यूड को अगर ऐड करते हैं तो उनके आने वाले आंसर को, ये उनके रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड आता है ए बार प्लस बी बार, उससे ये डेफिनेटली हर एक के मैग्नीट्यूड का सम बड़ा होता है। ये ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, ये सम दो साइड्स का सम ऑलवेज तीसरे साइड से बड़ा ही होता है। इस कंसेप्ट से ये इनइक्वालिटी भी आप प्रूव कर सकते हैं। और दूसरी बात है कि दो वेक्टर अगर ए बार बी बार आपके पास अवेलेबल है तो इस ए बार और बी बार से आप प्लेन डिसाइड कर सकते हैं कि आपका वेक्टर कौन सा प्लेन में, बराबर है। ए बार और बी बार दो वेक्टर अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप कह सकते हैं कि वो दो वेक्टर कौन से प्लेन में है। अगर एक बार वो प्लेन डिसाइड हो गया है, उनका ए बार बी बार अवेलेबल होने से प्लेन डिटरमाइन कर सकते हैं। प्लेन अगर उनका डिटरमाइन हुआ तो ये उनसे तैयार होने वाले दो वेक्टर कौन से, ए बार प्लस बी बार और दूसरा ए बार माइनस बी बार, सम ऑफ द वेक्टर्स एंड डिफरेंस ऑफ द वेक्टर, ये दोनों भी जो आंसर इस वेक्टर्स है, ए बार प्लस बी बार एक नया वेक्टर है, ए बार माइनस बी बार भी एक नया वेक्टर है। ये दोनों भी वेक्टर ऐसे प्लेन में लाए होते हैं जिस प्लेन में आपका ए बार और बी बार है, लेकिन ऐसा होल्ड नहीं होता है उनके प्रोडक्ट में, उनके क्रॉस प्रोडक्ट में। तो उनका अलग आंसर आता है, उसकी प्लेन अलग होती है, लेकिन जिस वेक्टर में, जिस प्लेन में ए बार और बी बार है उसी प्लेन में उनका रिजल्टेंट प्लस का और उनका रिजल्टेंट माइनस का उसी प्लेन में लाया होता है। इतना इंफॉर्मेशन आपके पास